Morning class. I hope that you are safe and healthy and would have completed the work which I have given you in the last video class. In the last video class, we completed question number 1, 2 of your exercise 7.1, that is cubes and cube root chapter. Today we are going to solve with the question number 3 and question number 4 of this exercise 7.1. The question number 3 says find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. Same question as we did in your square and square root. In this question we have to tell the smallest number by which the following number which are given to you should be divided, जिनको डिवाइड किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर से ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए. तो फॉर दैट व्हाट वी विल बी डूइंग, फर्स्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. जो गिवन नंबर है उनके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो आई एम सॉल्विंग द थर्ड एंड द लास्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ योर question number 3. The remaining part that we will do by yourself as a homework. So first 135 का हम क्या निकालेंगे, we will be finding out the prime factors of it. Since it contains 5 at the end, so this number will be divisible by 5. So 5 2s are and 5 7s are, so we are getting 27. Then this 27 will be divisible by 3. 3 9s are again 3 3s are again 3 1s are. So what are the प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135 को प्राइम फैक्टर्स जो निकल कर आना है, दैट इज 135 इज इक्वल टू व्हाट, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. सो देयर इज अ नंबर 5 in the prime factors of 135 which is not forming a group of 3. For a perfect cube the number should be forming, the प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर शुड बी फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ 3. ग्रुप ऑफ 3 बनाना पड़ता है, 3 सिमिलर नंबर का ग्रुप बनाना होता है, दैट इज ट्रिपलेट फॉर्म करनी पड़ती है. तो 5 कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, ओनली सिंगल 5 इज देयर एंड 3 इज फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट. 3 ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है बिकॉज देयर इज अ 3 3s, 1 2 3 3 है, तो हमारे पास 3 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, ग्रुप ऑफ 3 बन रहा है, बट 5 का नहीं बन रहा है. फॉर दैट व्हाट वी नीड, वी हैव टू इरेज दिस 5. हमें क्या करना होगा, 5 को इरेज करना होगा बिकॉज हेयर वी आर डिवाइडिंग. हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है. तो दिस 135 शुड बी डिवाइडेड, जो ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है उस नंबर को क्या करते हैं, हम हटा देते हैं. तो वी वुड बी इरेजिंग दिस 5. तो 135 शुड बी, ये कैसे इरेज होगा, जब हम इसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 to obtain what, परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ठीक है, किसको, 135 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से. सो व्हेन वी आर डिवाइडिंग 135 बाई 5, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 27. जो ये नंबर है ये क्या होगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा. बट यहाँ पे आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, तो दिस विल बी द आंसर, दैट इज 5 शुड बी 135 शुड बी डिवाइडेड बाई 5 to obtain a perfect cube. I hope you understood how to solve this type of question. Now one more question I will do for you, that is fifth part of this question number 3. The fifth part is your 704. So you have to tell by what numbers, smallest number that 704 should be divided to obtain what, perfect cube. For that we will be first finding out the prime factors of 704. 704 का prime factors निकालेंगे. Since this 704 contains 4 at the end, so this number will be divisible by 2. 2 से divide होगा 352 times. कितने times, 352 times. Again it contains 2 at the end, again this number will be divisible by 2. कितने times, 176 times. Again at the end there is a 2, this will be divisible by 6, so this will be divisible by 2. कितने times, 88 times. Again 2 से divide होगा कितने times, 44 times. Again इससे डिवाइड होगा 2 से कितने टाइम्स, 22 टाइम्स. अगेन 2 से 11 टाइम्स. फिर 11 से केवल 11 कट सकता है, 11 वन जा 11. सो वी हैव अ प्राइम फैक्टर 704 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकलना है बेटा, 2 मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, and only one times there is 11. So now we will check what all numbers prime factors are forming triplet. ट्रिपलेट कौन कौन फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है. अगेन वी हैव अ ट्रिपलेट ऑफ 2, बट वी डोंट हैव एनी ट्रिपलेट ऑफ 11. 11 का ट्रिपलेट नहीं है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस 11. तो रिमूव 11 कैसे रिमूव होगा, बाय डिवाइडिंग दिस 104 बाय 11. सो 704 शुड बी डिवाइडेड बाय
11 to obtain perfect cube. सो 704 को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं, तो वी आर गेटिंग नंबर एज 64 एंड दिस नंबर इज योर व्हाट, दिस नंबर इज योर व्हाट, परफेक्ट क्यूब. जो 64 निकल कर है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है. बट आपको आंसर पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइड. तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 11 से डिवाइडेंगे ताकि जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो, परफेक्ट क्यूब हो. सो दिस 704 को जब 11 से डिवाइड करूँगा आई विल बी गेटिंग क्वेश्चन एज 64. So this is how you can solve this question number 3. Now we will move to the question number 4. The remaining parts of question number 3 that you will do by yourself as a homework. Now come to the question number 4. Now this is the question number 4 of your exercise 7.1. The question number 4 says Parikshit makes a cuboid of plasticine of sides 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will be needed to form a cube? एक परीक्षित है, उसने एक क्यूबॉइड बनाया हुआ है, प्लास्टिसीन एक मटेरियल है उससे, जिसके डायमेंशन आपको दिए 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अब वो क्या कर रहा है, उस प्लास्टिसीन के जो क्यूबॉइड्स बने हुए हैं उनको ज्वाइन करके क्यूब फॉर्म कर रहा है. तो बोले ऐसे कितने क्यूब्स चाहिए होंगे, क्यूबॉइड चाहिए होंगे क्यूब बनाने के लिए. सो दिस इज अ क्यूबॉइड. ये क्या आपका क्यूबॉइड है जो परीक्षित ने बनाया है, जिसकी लेंथ आपको दिए हुए 5, ब्रेथ आपको दिया है 2 और हाइट आपको दिया है 5 सेंटीमीटर. आपको इससे इन छोटे छोटे को मिलकर क्या बनाना है, क्यूब बनाना है. यू नो दैट जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, मेंसुरेशन में आपको पता है वॉल्यूम, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. जो ये क्यूब इस रीजन में जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है वो होगा, उस वो रीजन कहलाएगा, आपको स्पेस कहलाएगा, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. अब इन क्यूब्स को रख के, क्यूबॉइड्स को रख के हमें क्यूब बनाना है, बड़ा सा क्यूब बनाना है. और जो क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब सेम नंबर का प्रोडक्ट होगा, दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब. क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा. इसका अगर लाइव एग्जांपल देखना है तो आप व्हाट यू कैन डू, यू सी एवरी हाउस बॉट व्हाट, मैच बॉक्स बाय करते हैं. तो व्हेन यू बाय अ मैच बॉक्स, ठीक है, पीसेज अगर हम मैच बॉक्स की बाय करते हैं तो दिस इज इन शेप ऑफ व्हाट, क्यूबॉइड के शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के शेप में होते हैं. व्हेन यू बाय द होल पैकेट, जब पूरा का पूरा पैकेट लेते हो आप मैच बॉक्स का, एट आई थिंक इट इज ऑफ 10 रुपीज, तो यू फाइंड दैट बॉक्स इज इन शेप ऑफ क्यूब. किसके शेप में होता है बेटा, क्यूब के शेप में होता है. बट वो बना किससे होता है, अंदर से क्यूबॉइड के फॉर्म में. तो कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे उस क्यूब को बनाने के लिए, क्या यूज करेंगे बेटा हम, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम. जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, वेयर इज जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है आपका क्या, साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज द परफेक्ट क्यूब. अब आपको इस केस में क्या दिया हुआ है, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के डायमेंशन दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है, कितना दिया हुआ क्यूबॉइड, दैट इज 5, 2 एंड 5 सेंटीमीटर. तो मतलब लेंथ आपकी 5 है, ब्रेथ आपकी 2 है, अगेन हाइट आपकी कितनी है, 5 है. तो ये आपका क्या निकल जाएगा बेटा, वॉल्यूम निकल जाएगा इसका क्यूबॉइड को. हमें क्या बनाना है, वी वांट व्हाट, क्यूब. हमें फॉर्म करनी है क्यूब. क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, क्यूबॉइड होंगे. फॉर दैट नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड टू फॉर्म क्यूब बनाने के लिए नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीड होंगे, वो किसके इक्वल होंगे बेटा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो ये वॉल्यूम है इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है. हमारे पास 5 है, 2 है, 5 है. हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ये जो प्रोडक्ट निकल, जो ये प्राइम फैक्टर है, इनके क्या बनाने चाहिए, ट्रिपलेट बनाना है. क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है. वी हैव 5, 2 5 है, तो हमें एक ट्रिपलेट बनाने के लिए 1 5 की रिक्वायरमेंट है. क्या 5, कितने 5 की रिक्वायरमेंट बेटा, 1 5 की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, प्लस 2 का भी ट्रिपलेट बनाना है. तो ट्रिपलेट बनाने के लिए एक सिंगल 2 है, ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 2 2 की और जरूरत पड़ेगी. वी नीड 2 2s. तो व्हाट वी ऑल नीड, वी नीड 1 5 एंड 2 2s. तो जो इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स, कितने क्यूबॉइड्स की नीड होगी क्यूब बनाने के लिए. तो तभी हमारे पास क्या बनेगा, ये परफेक्ट क्यूब निकल कर आएगा. तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 दैट इज 5 to the 10, 10 to the 20. 20 क्यूबॉइड्स की हमें क्या होगी, नीड होगी. सो दैट जो आपका वॉल्यूम निकलेगा, जो वॉल्यूम निकल करेगा दैट विल बी व्हाट, परफेक्ट क्यूब. वो क्या होगा आपका, परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है,
तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब होगा, दैट इज हमारा क्यूब जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो आपका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब, जो आपका क्यूब फॉर्म हो रहा है उसका वॉल्यूम होगा। बट हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स नीडेड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 क्यूबॉइड्स। सो आई होप यू हैड ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, एंड यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्लस क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑन द कमिंग मंडे। जो आपका आने वाला मंडे है उसमें आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट्स का क्या होगा बेटा, टेस्ट होगा। ठीक, in the Google Docs, Google Forms format. So with this we finish up with today's class. In the coming class we will be solving the square cube root of any number by using prime factorization method. So that's all for today. Have a good day. Thank you. Jai Hind.